ओके, लिसन। तो कंडक्टेंस के पार्ट में हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न? द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी लर्न वाज G is equal to 1 upon R. That is, conductance is nothing but reciprocal of resistance. The unit of G was ohm inverse or mho, or we can also say the second formula that we learned was ये जो G है conductance, that was directly proportional to the area of the electrodes and the distance between them से inversely proportional था. तो मैंने अगर constant डाल दिया, that is K, that is conductivity, so the formula for conductivity will become K is equal to G L upon A. This is called as specific conductivity, and the unit for this one was ohm inverse, centimeter inverse, and L upon A is nothing but cell constant. So यहाँ पे K was called as specific conductivity, and L upon A is nothing but your cell constant. It's also given by the letter B. The next formula, that is a molar conductivity, is lambda, which is directly inversely proportional to the concentration. अगर concentration ज़्यादा रहेगा तो तुम्हारा ions को दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में resistance बहुत ज़्यादा रहेगा. तो higher the concentration, lower will be the molar conductivity. So this will be nothing but equal to, हमने इसका फॉर्मूला देखा था, इसको समझ के लिया था पूरा. It was 1000 K by C. 1000 ताकि हम लोगों का K और C का यूनिट सेम हो. C जनरली सेंटीमीटर इनवर्स and C generally is moles per dm cube and K is generally ohm inverse centimeter inverse, ताकि दोनों भी सेंटीमीटर इनवर्स में आए. इसका जो यूनिट है that is ohm inverse centimeter square mole inverse. This concentration is in terms of molarity. अगर मैं नॉर्मेलिटी के टर्म्स में बोलूं तो I will have equivalent conductivity. ये molar conductivity, ये equivalent conductivity. It will be same. If instead of molarity नीचे, now I will have normality. Okay, so we have a question over here which says a conductivity cell filled with 0.01 molar KCl at 25 degrees Celsius gives a resistance of 484 ohms. So if we will start solving this one, we have KCl solution, and in KCl solution the concentration given is 0.01 molar. The resistance of the KCl solution is 484 ohms. The conductivity is given as 0.00141. That means 1.14 1 into 10 raised to minus 3 ohm inverse centimeter inverse. Then what we have done is the solution was thrown off and उसमें ही हमने 0.001 molar NaCl डाल दिया. So for NaCl solution में concentration was 0.001, that's 10 raised to minus 3 molar. Is filled with the same cell and it is giving me a resistance now very high, that was 5490 ohms. You need to calculate the molar conductivity of the cell. We need to calculate the lambda of the cell. Now अगर मैं formula लिखूं तो what are we going to get?
we know कि lambda is nothing but 1000 k by c. this factor 1000 is multiplied ताकि k और c का यूनिट सेम रहे, क्योंकि k सेंटीमीटर में इनमें था और c डेसीमीटर में, तो टू मेक बोथ इक्वल वी हैव मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर. अभी आई हैव कंसंट्रेशन फॉर दिस बट आई वांट लैम्बडा, लेकिन मेरे पास k नहीं है, तो मैं इसको और एक्सपांड कर दूंगा. तो आई हैव 1000 बाई c इंटू 1 अपॉन r l अपॉन a. तो मेरे पास k इज 1 अपॉन r l बाई a, तो r भी है, अभी l बाई a नहीं है. उसी के लिए हम लोगों को ये पहला पार्ट दे रखा है, दैट इज KCL वाला पार्ट दे के रखा है. एक्चुअली हमारे लैब में भी यही होता है कि हम पहले एक बीकर में KCL भरते, वो KCL का हम लोगों को K पता रहता है, हम व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं एंड वी नो द सेल कांस्टेंट L बाय A पता कर लेते हैं, और फिर हम वो सोल्यूशन देख के हमारा जो मेन सोल्यूशन है दैट इज NaCl ओवर हियर, उसका हम लोग मोलार कंडक्टिविटी निकालते हैं. तो पहला पार्ट है फॉर KCL लिखेंगे सबसे पहले. तो KCL के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी नो कि कप्पा दैट इज K will be equal to 1 upon R L upon A. So therefore your L upon A is nothing but K into R. K is given as 1.41 into 10 raised to minus 3 into R is given as 484. Let's talk of units. So this is ohm inverse, centimeter inverse. This is ohm. तो ये हो जाएगा centimeter inverse. So therefore you don't have to multiply, you just keep it like this only. 1.41 into 484 into 10 raised to minus 3. We will calculate the final, we will do the final calculation. So in it, लैम्बडा निकालना है मेरे को NaCl का. तो फॉर NaCl लैम्बडा है 1001 by R L by A, so it is 1000. C is nothing but 10 raised to minus 3. 1 upon R that is 1 upon 5490, क्योंकि मैं NaCl का निकाल रहा हूँ, into L by A is entirely this, so it will be 1.41 into 484 into 10 raised to minus 3. So you solve this and at the end you will get the answer as 124.3 ohm inverse centimeter square mole inverse. Okay, so we will come to the next aspect of this, and that will be nothing but तुम्हारा relation between lambda and C. That is the relation between molar conductivity and concentration. What we know is molar conductivity and concentration are inversely proportional. कि अगर मैंने concentration कम किया and I am not decreasing the concentration by removing the ions, I am decreasing the concentration by diluting it. अगर मैंने आयंस कम कर दिया तो कंडक्ट कौन करेगा? तो हम लोग दो तरीके से कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं. एक तो तुम सल्यूट के आयंस निकाल दो, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, या तो तुम उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दो, तुम उसमें पानी ऐड कर दो, तो भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. तो वी आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन एंड माय मोलार कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. मैं अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाऊं, तो मेरा मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा. आयंस नहीं कम किया, आयंस उतना ही है, कौन उसमें पानी डाला है, पानी डालने की वजह से आयंस हैव बिकम गॉन फार अवे फ्रॉम वन अनदर. तो रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे और आराम से कंडक्ट कर रहे. तो इनवर्स प्रोपोर्शन वाली हमको एक प्रॉपर लाइन मिलती है, द ब्लैक लाइन यू कैन सी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस ब्लैक लाइन कैन ओनली बी ऑब्जर्व फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स.
this black line, okay. Okay, now the line is blue. This line can only be observed for strong electrolytes and not for the weak one. ये weak electrolytes के लिए नहीं observe हो सकता. While अगर weak electrolytes होंगे, जैसे हमारा acetic acid, weak acid, weak base, जो strong electrolytes होते हैं वो completely dissociate होते हैं, तो वो पूरी तरीके से आयन देते हैं और उनका हम लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में हमको उनका कर्व मिलता है. बट मेरे को वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा नहीं मिल सकता. वीक इलेक्ट्रोलाइट का मेरे को एक कर्व मिलता है, ठीक है, एक हाइपरबोलिक कर्व मिलता है. नाउ अगर कर्व मिला भी तो क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि अगर मेरे को लैम्बडा नॉट निकालना है तो क्या. नाउ व्हाट इज लैम्बडा नॉट? लैम्बडा नॉट इज नथिंग बट मोलार कंडक्टिविटी at zero concentration या molar conductivity at infinite dilution या limiting molar conductivity. इसके 3 नाम है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हमें एक चीज पता है कि अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो मेरा कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, काफी बढ़ेगा, ठीक है. तो द लोएस्ट पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो कॉन्सेंट्रेशन. जीरो कॉन्सेंट्रेशन से कम तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा नहीं, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन में वी कैन सी द मैक्सिमम कंडक्टिविटी एंड दैट इज मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. अब बट ये इसको हम लोग प्रैक्टिकली लैब में तो बना नहीं सकते. इफ यू आर मेकिंग NaCl सोल्यूशन तो तुम चाहे जितना भी डाइल्यूट कर दो तो कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ही. प्रैक्टिकली तो हम इसको बना नहीं सकते, तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं? ये मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व है. मैं क्या करूंगा, आई विल एक्स्ट्रापोलेट. एक्स्ट्रापोलेट मतलब मैं इसी लाइन से इसको ऊपर ऊपर की तरफ कट करने की कोशिश करूंगा. तो ये मेरा y एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करेगा एंड दैट पॉइंट y एक्सिस पे जहां पे कट किया दैट इज नथिंग बट लैम्बडा नॉट, क्योंकि यहाँ पे द कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो. तो एट दिस पॉइंट द कंडक्टिविटी इज एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी. तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्बडा नॉट निकाल सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्बडा नॉट हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एज यू कैन सी वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है, तो वो कर्व के फॉर्म में आता है. तो अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट भी करूं तो ये आगे आगे जाके वाई एक्सिस पे पैरेलल हो जाएगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्बडा नॉट बाय प्रैक्टिकल मेथड और इवन बाय ग्राफिकल मेथड. प्रैक्टिकली जीरो कॉन्सेंट्रेशन लाना पॉसिबल नहीं है, ग्राफिकली ये कोइंसाइड ही नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. तो दिस आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्बडा नॉट कैसे निकालते हैं. ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी है दैट इज द लैम्बडा नॉट, दैट वी कैन कैलकुलेट, दैट वी कैन नो बाय ग्राफ. तो हम लोग ने लैम्बडा और सी का ग्राफ प्लॉट किया और हम लोगों को लैम्बडा नॉट मिल गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. कैसे? बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग. एक्स्ट्रापोलेट करके मेरे को मिल गया. वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं मिल सकता, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग मैथमेटिकली करेंगे एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा नॉट मैक्सिमम कंडक्टिविटी दैट इज कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए हमारी हेल्प करेंगे कोलरॉश लॉ. कोलरॉश लॉ की मदद से वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम कंडक्टिविटी. ना सबसे पहले तो समझो कि कंडक्टिविटी वर्क कैसे करता है. यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इट्स कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्योंकि इट्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. नाउ आई हैव माय पॉजिटिव आयन. माय पॉजिटिव आयन वांट्स टू मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास जाके इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, रिडक्शन करना चाहता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहता है. बट if the concentration is high,
there will be a lot of negative ions or there will be a lot of positive ions जो उसको hindrance create करेंगे. It will not allow it to reach to the negative electrode and conduct electricity. तो ये है हमारा रेजिस्टेंस. अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो आयंस के बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा. तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कंडक्टेंस कम होगा. तो दिस वन थिंग वी नो इज कि इफ आई एम डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, कैसे डिक्रीज कर रहे हैं? बाय एडिंग वाटर. तो इफ आई एम एडिंग मोर वाटर, so my cations, anions and cations, anions, सारे anions काफी दूर दूर हो जाएंगे, बीच में पानी आ जाएगा और वो अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. नाउ एंड दैट इज ओनली कि हम कंसंट्रेशन कम करें तो कंडक्टिविटी बढ़ती है. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आई एम टेलिंग यू दैट द lambda naught, this is a smaller lambda naught value. So let us just assume it for now. So lambda naught value of Na plus, let's say, is 60 ohm inverse centimeter square mole inverse. मतलब Na plus अकेला इतनी कंडक्टिविटी दिखा सकता है. एंड लेट्स से कि तुम्हारा Cl माइनस can show a conductivity of 40 ohm inverse centimeter square mole inverse. तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? You will expect कि जो तुम्हारा लैम्बडा रहे for NaCl should be 100, right? You will expect the lambda should be 100 क्योंकि तुम्हारे पास NaCl में दो आयन प्रेजेंट होता है, Na plus and Cl minus, and Na plus is showing the conductivity 60 and Cl minus is showing the conductivity 40. So total conductivity should be 100, but it is not 100 क्योंकि this conductivity is at zero concentration. Zero concentration मतलब क्या? जब Na plus को कोई दूसरा Na plus या कोई दूसरा Cl minus रेजिस्ट नहीं कर रहा है, जब Na plus खुद अपनी हिसाब से कंडक्टिविटी शो कर रहा है, देयर इज नो अदर आयन टू रेजिस्ट इट, so the maximum conductivity Na plus can show is 60. The maximum conductivity Cl minus can show is 40. The maximum conductivity NaCl can show, that is lambda naught, is nothing but 60 plus 40, that is 100. That is individual conductivity. यही है तुम्हारा कोलरॉश लॉ. कोलरॉश लॉ ये बोलता है कि अगर तुम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन को, सोल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे लेके आ गए, तो हर आयन इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेगा टू द टोटल कंडक्टिविटी. हर आयन अपना मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो करेगा. Na प्लस जितना कंडक्टिविटी शो कर सकता है वो पूरा शो करेगा क्योंकि उसको दूसरा आयन तो अभी रेजिस्ट कर नहीं रहा है क्योंकि देयर इज जीरो कंसंट्रेशन. तो Na प्लस विल शो मैक्सिमम कंडक्टिविटी जितना वो दिखा सकता है, Cl माइनस विल शो मैक्सिमम कंडक्टिविटी, एंड हेंस दैट इज आवर टोटल कंडक्टिविटी विल बी द कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन. लेकिन ये जीरो कंसंट्रेशन के अलावा कोई भी दूसरे कंडीशन में तुम्हारा लैम्बडा NaCl विल नॉट बी इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस, क्योंकि दूसरे कॉन्सेंट्रेशन पे तुम्हारा Na प्लस एंड Cl माइनस इज नॉट गोइंग टू शो फुल कंडक्टिविटी. वो कम दिखाएंगे क्योंकि उनको रेजिस्टेंस होगा उनका, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. तो ये कोलरॉश लॉ बोलता है कि at infinite dilution each ion will contribute individually to the total molar conductivity without the interference of the other ion. So this was law. अब हम इसके थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालेंगे ये मैं तुम लोगों को अभी समझाता हूँ. Now let us see कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे. लैम्बडा नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? So what we can do over here is, जैसे I want to calculate lambda naught for acetic acid, but this is unknown.
बिकॉज दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैंने इसका ग्राफिकली भी प्लॉट किया तो ये ऐसा कर्व के तरह आएगा, तो वो कोई भी पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कट नहीं करेगा, तो आई विल नॉट नो व्हाट इज लैम्डा नॉट, बट आई कैन नो लैम्डा नॉट ऑफ sodium acetate. Sodium acetate is a salt which is a strong electrolyte. Every salt is a strong electrolyte. वो पूरी तरह डिसोसिएट होता है। तो लेट्स से इसका मोलार कंडक्टिविटी इज x, ohm inverse centimeter square mole inverse. You can also find the lambda naught for HCl. HCl के लिए भी मेरे को lambda naught मिल जाएगा। तो अगर मेरे को HCl के लिए भी lambda naught मिल रहा है, let's say it's y, mole inverse centimeter square ohm inverse. And lastly, I also can find out the lambda naught of NaCl. Now HCl is a strong acid, तो वो पूरा डिसोसिएट होगा, तो उसका भी वो भी strong electrolyte है. Sodium acetate is also a strong electrolyte. NaCl is also a salt, so that is also a strong electrolyte. So I don't know the molar conductivity at infinite dilution for acetic acid, लेकिन मेरे को इन तीनों का पता है। और कैसे पता है? ग्राफिकली, प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते लैम्डा नॉट। हमने प्रैक्टिकली लैम्डा और सी का एक लाइन बनाया है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके हमने लैम्डा नॉट निकाला है। तो दीज थ्री आई नो। अब इन तीन के मदद से आई कैन कैलकुलेट दिस। नाउ यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला। कोलरॉश लॉ बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन cation and anion will show its maximum conductivity without the interference of other ions. तो अगर मुझको लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, तो आई जस्ट हैव टू नो द मैक्सिमम कंडक्टिविटी that acetate ion can show and the maximum conductivity that H plus ion can show. इसको डिसोसिएट करके ये दो आयन बनेगा, तो ये दोनों जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो करेंगे वो मुझे पता करना है, एंड दैट इज आल्सो अगेन वेरी सिंपल टू फाइंड आउट. नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई विल ऐड दीज टू थिंग्स. मतलब मैं ये दोनों वैल्यू को ऐड करूंगा. किस वैल्यू को? सोडियम एसिटेट को तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO minus Na plus, it's a salt, इसलिए माइनस प्लस लिखा है. लैम्डा नॉट ऑफ HCl. तो अगर मैंने इसको कोलरॉश लॉ के हिसाब से लिखा, कोलरॉश लॉ ये बोलता है कि जो तुम्हारी टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है, दैट इज अ बड़ा वाला लैम्डा, इज नथिंग बट लैम्डा नॉट ऑफ एसिटेट आयन, इंडिविजुअल आयंस का टोटल होता है ना, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस आयन. उसी तरह HCl का हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस आयन. तो मेरे को एसिटेट आयन चाहिए, मेरे को H प्लस चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए? दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस. आई डोंट वांट Na प्लस एंड Cl माइनस, तो जस्ट मैं NaCl को माइनस कर दूंगा इससे. तो माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl. तो मैंने इसको इससे माइनस कर दिया, तो यू विल हैव माइनस ब्रैकेट में लैम्डा नॉट ऑफ NaCl क्या था? Na प्लस प्लस Cl माइनस. तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो अगर मैंने ब्रैकेट खोला तो Na प्लस का लैम्डा नॉट कट जाएगा, Cl माइनस का कट जाएगा, एंड व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ इज लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस एंड H प्लस, व्हिच इज नथिंग बट CH3COOH. तो इन शॉर्ट मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. और कैसे निकाला हमने एसिटिक एसिड का? हमने सोडियम एसिटेट जो हमको ग्राफिकली मिला था, और हमने HCl जो भी हमको ग्राफिकली मिला था, उसको ऐड कर दिया, NaCl से माइनस कर दिया, मोलार कंडक्टिविटी विल बिकम सेम. ये कर सकते हैं क्योंकि जो इंडिविजुअल आयंस का कंडक्टिविटी है उसको टोटल करके तुमको टोटल मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगा. नाउ दिस इज पॉसिबल ओनली एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एट एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एट वन मोलार सोल्यूशन,
I cannot say कि lambda HCl will be equal to lambda naught of H plus and lambda naught of Cl minus. क्योंकि if the concentration is not zero, then तुम्हारा individual ions will not show the maximum conductivity. Maximum conductivity will be shown only at zero concentration. So we will practice a sum for weak electrolytes. So what is given is, I'm not writing the question. What is given is, what is the molar conductivity of AgI at zero concentration? So we need to find out the molar conductivity of AgI at zero concentration. तो इस तरीके से represent करेंगे. अब दिया क्या है? If lambda naught values of NaI, AgNO3 and NaNO3 are given. So we are given the lambda naught value for NaI. We are given the lambda naught value of AgNO3, and we are given the lambda naught value of NaNO3. तो NaI का दिया हुआ है 126.9. Obviously the unit is ohm inverse, centimeter square, mole inverse. For AgNO3 it is given as 133.4 ohm inverse, centimeter square, mole inverse. And for NaNO3 it is given as 121.5. तो सम सॉल्व करने के लिए तुमको जिसका चाहिए उसके आयन देखो सिर्फ. So I want Ag over here, I can find Ag over here. I want I over here, so I can find I over here. So I will add these two things. क्योंकि ये ऐड करने के बाद मेरे को AgI मिल जाएगा. बट मेरा Na और NO3 का भी कंडक्टिविटी ऐड हो जाएगा जो मुझको नहीं चाहिए. So I will subtract it with NaNO3. So therefore I can simply say my lambda naught of AgI is nothing but my lambda naught of NaI plus my lambda naught of AgNO3 minus my lambda naught of NaNO3. I substitute the value. तो NaI का आएगा आंसर 126.9, AgNO3 का आंसर आएगा 133.4 and this का आएगा 121.5. So the answer that we get is 138.8 ohm inverse, centimeter square, mole inverse. Just इसको एक बार expand करके लिख देते, nothing very great. So lambda naught of NaI can be written as lambda of Na plus lambda naught of I minus. This can only be written at zero concentration, not at any other concentration. AgNO3 can be lambda naught of Ag plus and lambda naught of NO3 minus plus lambda naught of NaNO3. So that is, इसको subtract करना है, sorry. So it will be minus lambda naught of Na plus lambda naught of NO3 minus. So Na plus कटेगा, NO3 minus कटेगा, and you will get lambda naught of AgI. That is it. We got the answer. It's a very simple question.